6 تاریخ ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کا عالمی دن ہے، اور اس سے اگلا دن عالمی یوم صحت ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عالمی یوم صحت کا مطلب یہ ہے، اور پھر ہم خدا کا شکر ادا کریں خاص طور پہ آج کے دن کے لیے جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا ہے۔ ہم ان گھرانوں کے ساتھ پیار کا، محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بھائی آصف، بھائی امید گاندھی اور چند ایک اور فیملیز ہیں ان کے گھروں میں پچھلے دنوں غمگینی آئی، لیکن خدا نے تسلی دی۔ ہم انہیں یاد کرتے ہیں، خاندانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ کمزوری کی حالت میں ہیں، خدا نے بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم مسز فہمیدہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، بیمار تھی، خدا نے اپنا شافی ہاتھ بڑھایا، انہوں نے صحت پائی، اور آج صبح کی عبادت میں وہ خدا ان کے گھر میں تھی۔ تھامس کے لیے خدا کا شکر۔ آج سے اٹھتے ہیں آپ سب لوگوں کے کو ویلکم کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ راستہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ان بچوں کے لیے شکر ہے جو چرچ کا کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ بھائی یعقوب داس کے لیے، انتظامیہ کے سارے لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو آپ سب کی خدمت کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنے خاندان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں، جہاں خدمت کرتے ہیں، جو صبح کر آلٹر کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں۔ میں ایک ایک کو یاد کرتا ہوں اور ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بینچز جہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ دیر بعد آئے ہیں، دیکھیں ان کی حالت خوبصورت بینچ ہے، ان کی پالش بڑے اچھے طریقے سے کاپلینگی کی گئی ہے۔ مین دروازہ بڑے شوق سے ابتدائی لوگوں نے بنایا، اس لیے ہم آج ابتدائی لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، بزرگوں کے لیے جنہوں نے اس چرچ کی بنیادیں رکھی۔ مشکل وقت تھا ان کے لیے اس وقت، ہم ان کی خدمت کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، اور اس وقت کی ساری انتظامیہ کے لیے اور ساری کلیسیا کے لیے جو ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی ساری محنت کے لیے۔ آج سے 50 سال پہلے موٹریں نہیں تھیں، نلکا چلاتے تھے، پھر پانی بھرتے تھے۔ اس لیے ہم پادری پیئر شیمل کی خدمت کے لیے، بشپ صاحب کی خدمت کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جان وکٹر مل صاحب ایز پاسٹر میں ہم خدمت کرتے رہے، پادری وکٹر کھوکر کے لیے، پادری ناصر کے لیے، اور خدا ان کا شکر ہے کہ جس طرح سے اور جس وقت میں آئے، انہوں نے اپنی خدمت میں جو کام خدا انہیں دیتا تھا انہیں کیا۔ میں اس چرچ میں 85 میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو اس وقت یہ چھت ایسی نہیں تھی، یہ چھت چادر کی تھی، لوہے کی۔ تو جب ہم یہاں پروگرام کر رہے تھے، میں ایک تنظیم کا اس وقت ایریا ڈائریکٹر تھا، تو جب ہم عبادت کر رہے تھے تو بارش آ گئی اور بہت تیز آ گئی، تو وہ جو اوپر لوہے کی چادر تھی بہت زیادہ آوازیں دی۔ پھر خدا نے پادری چوہن وکٹر مل صاحب کو استعمال کیا، یہ چھت پہ اس طرح سے درجہ بدرجہ سب لوگوں نے اپنی خدمت میں جو کام کیا، ہم ان کی خدمت کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس وقت کی انتظامیہ کے لیے دعا وہ ہے کہ خدا آپ سب کو جس وقت ہم جہاں موجود ہیں، چند ایک وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آج بھی ان کی محبت، ان کا پیار اس چرچ کے ساتھ اسی طرح سے ہے، سب ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بھائی محمود بٹی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، سر آپ چھوٹی سی دعا ہمارے لیے کریں گے کلام سے پہلے، کلام مقدس کی تلاوت سے پہلے ہم دعا مانگیں۔ ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی جھکائیں، اور خداوند کا نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے آج کے اس خوشی کے موقع کے لیے کہ خداوند نے ہماری زندگی میں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر، اپنے دلوں کو جھکا کر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے پرمسرت بات ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں میں ایک اور دن لایا
کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی اس خوشی میں اس کے گھر میں اس کے لوگوں کے ساتھ، خادم کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ اس ساری شکر گزاری کو خداوند اپنے حضور قبول فرما۔ خداوند میں اس وقت میں تیرے خادم کو تیرے پاک ہاتھوں میں تیرے مسا کے نیچے لے آتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں کہ تو اس سے ہم کلام ہو، اپنے پاک کلام کا مسا دے، تاکہ آج کا کلام ان سب جانوں کے لیے جو تیرے حضور جھکی ہیں خداوند کا 100 گنا پھل لائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں خداوند تجھے جس طرح تو آج جی اٹھا ہے، ہم تجھے اپنی زندگیوں میں خداوند کا جلال دیں۔ تو آج سے تقریباً 2000 سے بھی زیادہ عرصہ گزرا کہ تو اپنے مشن کو کمپلیٹ کر کے خداوند تو باغ کے دانے ہٹا ہے اور وہاں سے ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ خداوند جب ہم یہ دن مناتے ہیں تو حقیقی طور پر تو ہماری زندگیوں میں بھی جی اٹھے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے 100 گنا پھل لائے اور ہم سب کی زندگیاں تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ اپنے خادم کو بڑا مسا دے کر اپنے جلال کے لیے اور کلام کی خدمت کے لیے استعمال کر۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فائدے یسوع نام کے وسیلے سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ہم کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ آج کا پہلا میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا۔ جس پتھر کو مہماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے، صلح کی خوشخبری مائک ٹھیک کریں، انتخاب مائک ٹھیک کریں، آواز کم آ رہی ہے، بولے۔ اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیہ کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے ہے، جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔
और सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 28वां बाब 7वीं आयत से 15वीं आयत। पाक कलाम में लिखा है, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुज़ुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको ख़तरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसे सिखाया गया था वैसे ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। रसूलों का अकीदा, मेरा और आपका ईमान 678 सफ़ा पर, और हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवाई मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुले कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। हम दुआ मांगे और अपने आप को तैयार करें। मैं मिसेस नसीम जावेद इस्माइल से दरख्वास्त करूँगा कि वो चंद अल्फाज में कलाम के लिए मेरे लिए दुआ करें, ताकि कादर मुतलक ज़िंदा और पाक खुदावंद, वफ़ादार खुदावंद, तू जो है और जो था और जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए, आज के इस दिन के लिए, जो कि नहायत ही खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में एक नया दिन आया है। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आए बाप, तो अपने लोगों के लिए तूने ऐसी मोहब्बत रखी, बल्कि सारी दुनिया के लिए, कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें ज़िंदगी दी है। आए यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे पाक रूह के लिए, जो कि जुम्बश करता है और हम सबको दिलेरी देता है कि हम तेरे फजल के तख्त के सामने आकर अपने सरों को झुकाते हैं, अपने दिलों को झुकाते हैं, अपनी अर्ज़ें, मुनाजातें, फरियादें तेरे हजूर में पेश करते हैं। इस वक्त मैं दुआ करती हूँ ख़ास तौर पर तेरे खादम के लिए, सर से लेके पाँव के तलवे तक तेरे लहू को अप्लाई करती हूँ। यीशु नासरी, वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह, आए खुदावंद, उसका ज़ोर और उसका कुव्वत बने, जैसा कि यसाया के तूने
खुदावंद होठों पर सुलगता हुआ कोयला लगाया, इसी तरह आज अपने खादम के होठों पर तेरा सुलगता हुआ कोयला लगे, ताकि तेरे कलाम की खुशबू जो फैला रहा है, आए यीशु नासरी, बहुत से लोग नजात पाएं और कसरत से पाए, क्योंकि वक्त नज़दीक है और तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। आए जिंदा खुदा के बेटे, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात हो। नजात सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर ज़बान उसकी इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा का बेटा है। आए बाप, आज का कलाम का जो बीज बोया जाए, आए खुदावंद वो 100 का 100 गुना फल लाए, और जितनों ने आज तेरा कलाम रूहे ज़मीन पर सुना है, सुनने वाले हैं और सुना जाएगा, उनके दिलों में आए यीशु नासरी 100 का 100 गुना फल लाए। आज की मेरी छोटी सी मिन्नत को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर से, सुन ले और बख्श दे। आमीन आमीन। जमात बैठ जाए। दुआ का खादम होते हुए आप सबकी खिदमत में सारे खादमों के साथ मिलकर, घराने के साथ मिलकर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हो। ईस्टर मुबारक हो आपको। हैप्पी ईस्टर। अभी देखिए बाहर जाके आपने कहना है हेलो सिस्टर, हैप्पी ईस्टर, है ना? तो खुश हुआ करें। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, जब आप खुदावंद के घर में आते हो तो खुशी के साथ बैठा करें। क्यों मैं ये कहता हूँ? खुश होना और खुश रहना और खुशी देना, क्या कुछ मैंने कहा जी? जरा बोले। खुश होना, खुश रहना, खुशी बांटना और खुशी का इजहार करना, ये शुक्रगुजारी का अमली सबूत है। तो आप कहते हैं जी हम आए शुक्रगुजारी की। तो कभी कभार कई लोगों को मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि खुश रहें, खुश हों, खुशियाँ बांटें, खुशी का इजहार करें, ताकि दूसरों के लिए भी आप बरकत का सबब ठहरे और अपने लिए। मैं आप सबको देख के खुश हूँ। और पहले चूँकि कल सुबह जो इबादत हुई, ऊपर भी लोग थे, नीचे भी, साइड पे भी और यहाँ पर भी, तो मैं कह रहा था कि फिर मुश्किल हो जाएगा शायरबानी, लेकिन मैंने अभी ये अपने साथी से कहा कि आप शायरबानी का इंतज़ाम करें, ताकि कई लोग जो साल के बाद आए हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं, जो 6 महीने के बाद आए, नए साल की इबादत के बाद, तो फिर वो खुदा यीशु मसीह के बदन और खून के बगैर ना जाए। ये इन खादमों की मेहरबानी है कि इन्होंने तैयारी कर दी है, इनके लिए तालियां बजा दें। और सबसे जो बड़ी बात है, ये मुश्किल किया है कि वो घर से सारी चीज़ें हमें मुहैया कर देती हैं। इसलिए हम इन सारी खिदमात के लिए जो आपके सुपुर्द है, मेरे सुपुर्द है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि लोग पहली दफ़ा आए हैं, कि जो लोग देर बाद आए हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। उन लोगों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने गुड फ्राइडे की इबादत में कलमात पेश किए। लेंट सीज़न कितने दिनों का था? शाबाश शाबाश, कितने? 46 दिन का लेंट सीज़न था। आज 46वां दिन। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। ये जो लेंट सीज़न है, ये हमें खुशखबरी की तरफ लेके जाता है। कई दफ़ा लोग बड़ी मायूसी के साथ लेंट को मानते हैं, लेकिन लेंट आने वाली खुशखबरी का इजहार है कि खुशी आने वाली है। और वो खुशी क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई। आज का दिन फतह का दिन है, ईस्टर फतह का दिन है। तो बता सकता है कि यीशु मसीह ने कितने मोजज़ात किए,
सलीब पर आने से पहले पहले 36 मोजज़े किए। कितने जी? ऊंची बोले, क्या हुआ है? खुश हो के बाने 36 मोजज़ात। लेकिन 3 मोजज़े ऐसे थे जो मुर्दा थे और उन्हें यीशु मसीह ने जिंदा किया। और फिर भी खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुर्दों में से जिंदा होने वाले हैं उनमें सबसे जो पहलौठा है वो कौन है? क्यों कहा गया? इसलिए कि वो लोग जो मर चुके थे, यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो फिर अपनी उम्र को पहुंचकर क्या हुआ जी? फिर सो गए। लेकिन यीशु मसीह की कब्र अब तक भी खाली है। मेरे एक बड़े अजीज हैं, प्रोफेसर है गॉर्डन कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा हूँ। आज सुबह उन्होंने मुझे एक वीडियो भेज दी। वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पे खड़े थे, उनके साथ 4-5 लोग और खड़े थे, और वो वहाँ पर गीत वही गा रहे थे जो गीत हम सुबह गाते आए और अभी क्वायर ने किया। कौन सा गीत है? हालेलुया, बोलो यीशु ते दुनिया दा। तो हालेलुया का जो मतलब है ना, वो है ये है कि यीशु मसीह जिंदा हो। तो मैं खुश हो रहा था ना देख। प्रोफेसर सफीर आलम उनका नाम है, गॉर्डन कॉलेज के प्रोफेसर थे, आजकल अमेरिका में हैं। तो वो वीडियो देखकर खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र के करीब खड़े होकर वो यही गीत गा रहे थे। आप बड़े लकी लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं, बाबरकत लोग हैं। ये सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताबें जो आपके सामने पढ़ी है ना, ये पूरी दुनिया में मौजूद है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है मैं गया हूँ, मैंने वहाँ इस किताब को देखा और मेरा दिल खुश हुआ। गीतों की ये किताब, हमदो-सना की ये किताब, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज सुबह डॉक्टर आईडी शहबाज के लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं, जिन्होंने मेरे लिए और आपके लिए हमारी ज़ुबान में लिखा। तो मैं बात कर रहा था मौजूदा। आज मुझे एक और देनी थी पुकार, लेकिन वो मेरे पास कागज़ में 2 डायरी में आगे पीछे हुआ। आदिल परवेश और हिना, उनकी शादी भी है इसी महीने में। जो 3 मौजूद थे, वो नाइन की बेवा का बेटा मर गया था, वो जिंदा हुआ। यार की बेटी मर गई, वो जिंदा हुई। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दोस्त लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। लेकिन आज का जो मौजूदा यीशु मसीह ने अपने लिए किया, ये तो ऐसा मौजूदा था कि इसको जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो वहाँ पे लिखा गया था कि ऐसा मौजूदा जो मौजूदात का मौजूदा, मजमुआ है मौजूदों का। लेकिन ये ऐसा बड़ा मौजूदा जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद मुझे और आपको ये खबर दी कि मैंने मौत पर, कब्र पर फतह पाई। और जो हवाला पादी साहब ने पढ़ा है, आज की दुनिया के साथ बड़ा मिलता जुलता है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, लेकिन जब वहाँ के पहरेदारों को पता चल गया कि कब्र तो खाली हो गई है, खोले अपनी बाइबल, खोले, लाजमी खोले। देखेंगे फिर आप कि आज हमारे मुल्क में ऐसी बातें चल रही हैं कि नहीं चल रही। क्योंकि यहूदी लोगों की तो ये दस्तूर था, उनकी रवायत थी कि वो 3 दिन तक कोई भी उनका अजीज खुदा में सो जाता था, मर जाता था, दफन हो जाता था, उसकी कब्र पर कम से कम 3 दिन तक जाते रहते थे। 3 दिन लाजमी थे। लेकिन यीशु मसीह लाजर की कब्र पे तो चौथे दिन गए, ताकि लोग जाने कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये कुव्वत और ताकत है और लाजर मुर्दों में से जी उठा। लेकिन ये जो खुदावंद यीशु मसीह का है, ये मौजज़ों का मौजज़ा है, मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, मौजज़ों का मौजज़ा। और मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 11 गौर से सुनिए जरा आपने। जब वो जा रही थी खवातीन, तो देखो पहरे वालों में से बाद ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कहनों से बयान किया
اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا. غور سے اس بات کو دیکھیں اپنی بائبل میں. بزرگ ضروری نہیں ہے کہ جو بال سفید ہو جائے وہ بزرگ ہے. عقل دانش اور فہم کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے بزرگ ہیں وہاں پہ اس وقت کے؟ غور سے سنیں. ان کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا. مشورہ کر کے سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے. یہ صحیح انفارمیشن ہے کہ ڈس انفارمیشن ہے؟ آج کل میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. وہ صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی، صحیح معلومات نہیں ہوتی. آپ نوجوان خاص طور پر سن لیں، ان کو دیکھ کر آگے فارورڈ نہ کیا کریں. حالات بڑے خراب ہیں. جو بلاسفیمی کے کیس بنتے ہیں زیادہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آپ لوگوں کو پھنساتے ہیں مختلف طریقے سے. اس لیے میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں یہ حوالہ کہ دیکھیے اس وقت بھی ایسا تھا. روپیہ پیسہ دے دیا کس کو؟ پولیس والوں کو. آج بھی ہمارے یہاں چلتا ہے. انصاف ہی نہیں ہے. جب بہت زیادہ پیسے ان کو دے دیا اور کہا کہ یہ کیا دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آئے اور یہ سمسی کو یہاں سے چرا کر لے گئے. اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں. کیسا دور ہے یہ؟ اس وقت بھی ایسا تھا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ دور ٹھیک نہیں ہے. میں خود آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ خوفناک دور ہے، یہ وحشتناک دور ہے، یہ عبرتناک دور ہے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ شرمناک دور ہے. لوگ قبروں میں محفوظ نہیں ہیں، گلیوں میں ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو محفوظ کریں، اور اپنے آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں بچپن محفوظ کریں اور مستقبل اپنا محفوظ کریں. کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا. اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ سمسی کے جھوٹے کی بات ہے. جھٹلانا چاہتے تھے کہ مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا. میرے عزیزوں، پولس رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نکالیں رسولوں کے اعمال. رسولوں کے اعمال جب ہم پڑھتے ہیں تو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ رسولوں کے اعمال پڑھتے پڑھتے اپنے جو اعمال ہیں ان کو بھی میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کیا اعمال ہیں. یہاں پہ خدا کا بندہ میری اور آپ کی نصیحت کے لیے بڑی دلیری کے ساتھ 35ویں آیت 34ویں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. پترس نے زبان کھول کر کہا. یہ پترس کون تھا؟ یہ سمسی کا شاگرد تھا، بڑا جوشیلا تھا، بڑا سرگرم تھا، بڑا ایکٹیو تھا. اس نے کہا کہ اب مجھے پورا یقین ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا ہے، راستہ بازی کرتا ہے، وہ اس کو پسند ہے. جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی. آج بھی میرے پاس، آپ کے پاس جو خوشخبری ہے وہ صلح کی خوشخبری ہے، وہ پیار کی خوشخبری ہے، وہ محبت کی خوشخبری ہے، میل ملاپ کی خوشخبری ہے، خوشحالی کی خوشخبری ہے اور بحالی کی خوشخبری ہے. آئے میں آپ جن باتوں میں معیار آپ جکڑے ہوئے ہیں ان سے باہر نکلیں. کبھی کبھار ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ناکامی کو دشمن نہ سمجھیں. یہاں پہ دیکھ لیں، ناکامی کو استاد سمجھیں کہ ناکامی ہمیں سکھاتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ دوست بنائیں جو آپ کی بہتری چاہتے ہیں. پیچھے کھینچنے والے دوست نہ بنائیں. پھر فخر نہ کیا کریں کہ ہمارے گھر میں آتے ہیں جی، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے. پھر کیا بھائی، انہیں تو کھانے کی تمیز بھی نہیں ہوتی. آپ کو تو خدا نے ایٹیکیٹس لیے ہوئے ہیں. آپ لوگ تو بابرکت لوگ ہیں. اور جس شخص کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ڈسپلن تو سکھایا جاتا ہے. جب ہم
آپ لوگوں کو ٹرپ پہ لے کے جاتے ہیں، کیا مبارک میں لے کے جاتے ہیں، ڈسپلن تو سکھاتے ہیں. تو میری اور آپ کی زندگی میں تو ڈسپلن ہے، لیکن خطرہ آج کے دور میں یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی سوچ نہیں بدلتے. لینٹ تبدیلی کا یہ سلسی نے بھی دیکھے مجھے اور آپ کو کیا کہا کہ حقیقی خوشی کے لیے تبدیلی کا آنا ضروری ہے. اور میں اور آپ آج 2026 کے ایسٹر والے دن اپنی سوچ کو بڑا کریں، مثبت اور طاقتور سوچ بنا لیں، منفی خیالات کو چھوڑ دیں. جب آپ منفی سوچیں گے آپ پہ اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کبھی یہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ کمفرٹ زون میں رہیں، آسان کام پکڑیں، مشکلات کا مقابلہ کریں اور آگے بڑھیں. خدا کا بندہ پطرس رسول بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہے، اور آگے جا کر وہ کہتا ہے خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا، وہ بھلائی کرتا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم بھلائی کریں. مشکلات آئیں گی، دکھ مصیبتیں آئیں گی. کیا خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں بعد میں انہوں نے دکھ اور مصیبتیں نہیں جھیلی؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد، دفن کرنے کے بعد تو شاگرد تو اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو پریشان تھے کہ ہمارا استاد، ہمارا آقا، ہمارا باس ہم سے جدا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ لیکن یسوع مسیح نے تو پھر آ کر ان کو کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. اور یہاں پہ بائبل مقدس میں خدا کا بندہ کہتا ہے بھلائی کرتا، اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے. اس وقت ہمارے ملک میں بھی ابلیس بڑا کام کر رہا ہے، غلط قسم کے قانون بن رہے ہیں. میں اس میں اینڈ پہ آپ کو ایک حوالہ بتاؤں گا تاکہ آپ گھر میں جا کے ضرورت پڑے. ابلیس کے کام، میں بڑی دلیری کے ساتھ جب غیر لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ قانون انسانوں نے نہیں بنائے، آدمی نے بنائے. اگر انسانوں نے بنایا ہوتا تو ان میں انسانیت ہوتی. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو ابلیس کے ہاتھ ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا. خدا یسوع مسیح نے شفا بخش دی، رہائی بخش دی، آزادی بخشی، کیونکہ خدا اس کے ساتھ. اور ہم سب ان کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مارا. صلیب ہے کیا چیز؟ صلیب کو شو مارنے والی چیز تو ہے نہیں ہے. صلیب میرے لیے اور آپ کے لیے تو زندگی کا نشان ہے، میری اور آپ کی آن ہے، میری اور آپ کی شان ہے. اگر مسیح صلیب پر نہ دیا جاتا تو میں اور آپ آج بھی گناہ کی غلامی میں رہتے. لیکن آج یسوع مسیح کے موت پر، قبر پر فتح پا جانے کے بعد میں اور آپ غلام نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو آزادی کی روح دے دی. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت تھی، اور اس نے ہمیں موت سے نکال کر وہ ہمیں زندگی میں لے آیا. تاکہ لوگ، لکھا ہے میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے، یہ صلح کا پیغام ہے، یہ فتح مندی کا پیغام ہے. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو اس کو صلیب دے دیا، مار ڈالا، لیکن خدا نے تیسرے دن اسے زندہ کیا، ظاہر کر دیا، تاکہ نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا بھی کر دیا. کیسی بات ہے، عجیب بات ہے. ایک شخص جس کو صلیب دیا جائے، اس کو دفن بھی کر دیا جائے، وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے بھی. میں اور آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ میں اور آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ خاص طور پہ ان خاندانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے عزیزوں سے جدا ہوئے ہیں کہ یسوع مسیح جس نے موت پر، قبر پر فتح پائی، کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اسی لیے لکھا ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے مرتا نہیں بلکہ وہ سو جاتا ہے. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی مناتے ہیں، اور پوری دنیا یہ گواہی دیتی ہے. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس نے ہمیں حکم دیا. کیا حکم ہے آپ سب کے لیے؟ کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا
منصف مقرر کیا گیا. میرا اور آپ کا منصف تو وہ ہے جو یہاں کے منصف ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں. وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے نہیں ہیں، غلط قانون بنا جاتے ہیں. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایسٹر کے اس موقع پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 43ویں آیت پڑھ کے اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا. اگر آپ گناہ کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گناہ کی غلامی سے آزادی دینے والا صرف اور صرف میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح. ایک حوالہ نکالا، یہ بڑا ضروری ہے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے. کرنتھیوں کے نام، یہ 2 کرنتھیوں 6 باب ہے. یہ حوالہ میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آج ایسٹر کے موقع پر آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ سلامتی کا دن ہے اور میں نے اور آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں خدا کے حضور گزارنی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا نے ہم سب کو، ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ باندھ کر پانی میں پھینک دیا اور کہا کہ دامن گیلا نہیں ہونے دینا. کیسی بات ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے آپ نے، مشکلات میں صحیح گزرنا ہے آپ نے، دنیا کو آپ نے اندر نہیں آنے دینا. دنیا داری کی چیزوں سے اپنے آپ کو آپ نے ناپاک نہیں کرنا. اور یہ آیت بڑی ضروری ہے، غور سے سنیں. 6 باب 14ویں آیت میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. نوجوان بیٹے بیٹیاں سن لیں. بے ایمانوں کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے. بھائی لوگ تو ہمیں شرک کرنے والا کہتے ہیں. کیا ہم شرک کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو خدا کا شریک بنا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں. گیلری والوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ پتہ ہے آپ کو؟ تو جہاں شرک ہو، جہاں توحید نہ ہو، وہاں تو میل ملاپ ہی نہیں ہوتا. وہاں تو ہمارا ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ بنتے نہیں ہے. بھائی پھر پڑھیں. بے ایمانوں کے ساتھ. بے ایمانوں کا مطلب ہے جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا مسیح پر ایمان نہیں ہے. میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح پر ایمان ہے کہ وہ کماری مریم سے پیدا ہوا، سلیب دیا گیا، مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. اور مجھے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ مرنا ہے، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. کاش میری اور آپ کی زندگی میں ایسا ہو. آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو لوگ نا ہموار جوے میں، آپ غور سے اس حوالے کو پڑھ لیں، اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کے سامنے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ پڑھنا. بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے. ہماری ان کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے. ایک اور حوالہ نکالے، استثناء 7واں باب. یہ آپ کے گھروں میں جو بائبل ہے نا، یہ سارے حوالے وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں جا کے ضرور دیکھنے ہیں. 7واں باب نکالیں، نشانی لگا لیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. ہماری کتاب صرف اور صرف یہ بائبل مقدس ہے. ہمارا ایمان صرف اس پہ ہے. ہمارا ایمان اسی بائبل میں ہے، جس میں شریعت بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں صحائف الانبیاء بھی ہیں، جس میں انجیل مقدس بھی ہے، جس میں خطوط بھی ہیں. ہمارا ایمان صرف اس پر ہے. ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اس میں درج ہے وہی ہمارا ایمان ہے. تیسری آیت پڑھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ابھی حوالہ نہیں نکلا لوگوں سے. جب یہ آپ کا حوالہ نکال لیں گے پھر میں شروع کروں گا. 7واں باب
तीसरी और चौथी आयत मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। मैं दूसरे आयत से शुरू करता हूँ। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे शिकस्त लाए और तू उनको मार ले, तो तू उनको बिल्कुल नाबूद कर डालना। तू उनसे कोई अहद ना बांधना, ना उन पर रहम करना। मेन ट्रुथ वर्स ये है, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, गैरों से ना करना। नौजवान बेटे बेटियां सुन ले, कई फेसबुक पे लिखते जा रहे हैं कि अगर मेरी बहन अहले किताब है तो मैं भी अहले किताब हूं। किस तरह का सेंस है आपका भाई? हम नहीं है, हम सिर्फ बाइबल किताबें हैं। मेरी और आपकी तालीम जो मुझे और आपको दी गई थी, उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। क्यों ना लेना, क्यों ना देना? वजह बताई है, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। हमारी हलाकत का सबब भी है, आज हमारे ख़ानदानों की हलाकत का सबब भी है। हमारी कौम बनती नहीं है, हमारी कौम किसी को लीडर मानती भी नहीं है, हर घर में लीडर है। इसलिए मैं बड़े खुले अल्फाजों में नौजवान बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ खूबसूरत अल्फाजों का इस्तेमाल करें अपने वालिदैन की इज़्ज़त के लिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए, और ख़ास तौर पर अपने मसीहा की खातर, जिसने मेरी और आपकी खातर सलीब का दुख सहा। वो मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। उसने मेरा और आपका फिदिया दे दिया। उसने मेरे लिए और आपके लिए खून बहा दिया, क्योंकि बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं हो सकती। और जब उसने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया, तो फिर अब हम अपने नहीं रहे, बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। बल्कि कीमत से, उस वक्त तक हमारी कोई वक़्त नहीं थी जब तक हम खरीदे नहीं गए थे। हम गैर कौम थे, हम गैर वजूद थे, हमारा वजूद ही नहीं था। लेकिन जब खरीदे गए, मसीह के खून के वसीले से खरीदे गए, तो हम उसके वारिस बन गए, उसकी विरासत में आ गए। जब उसके खून के वसीले से खरीदे गए, फिर हम अपने नहीं बल्कि कीमत से। तो किसी ने कहा कि जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। यीशु मसीह ने अपना खून देकर आपको अनमोल कर दिया। भाई, आप वीआईपी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप आम लोग नहीं हैं, आप खरीदे हुए हैं। आप यीशु मसीह के लोग हैं, उसकी पैरवी करते हैं। ना गैर लोगों को बेटियां देना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से, बच्चों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे, ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदा का गजब तुम पर भड़केगा और वो तुझको जल्द हलाक। तो आए मैं और आप इस हलाकत से तो बचें, अपने बच्चों को बताएं, अपने ख़ानदान में रहकर। मैं खुदा का खादम होते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि जो आज का दिन है ये आम दिन नहीं है। जो हवाला पढ़ा गया ना, ज़बूर नंबर 118, ये कोर्स में कहा कि भी आपको बताऊँगा, खोले ज़रा ज़बूर नंबर 118। बस चंद अल्फाज और हैं, आप थक न जाएं। ज़बूर नंबर 118 जो भी आपके लिए पढ़ा गया, निकाले वो हवाला, खूबसूरत हवाला, जहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना। यीशु मसीह मेरी और आपकी निजात बना। जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। खुदावंद, ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है, लोगों की नज़र में अजीब है। लोग हैरान हो जाते हैं, किस तरह एक शख्स कब्र में चला जाए, दफन कर दिया जाए और वो मुर्दों में से जी उठे। ये लोगों के लिए
कितने अजूबे हैं दुनिया में? तुसी भी देखते अजूबे तो नहीं बैठे, खुश हो गए मुझे जवाब दिया करें। कितने अजूबे हैं दुनिया में? 7। लेकिन सबसे बड़ा अजूबा खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा और कहा मौत तेरा डंका है, और फिर बड़ी आजादी के साथ कह दिया देख मैं जिंदा हूं और अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे रवा की कुंजियां भी मेरे हाथ में। और यीशु मसीह ने तो मौत को मौत ही दे दिया है, मैं और आप तो उसके पैरोकार हैं। और खुद तो उसने अपने सर पे कांटों का ताज ले लिया, लेकिन मुझे और आपको जिंदगी का ताज दे दिया। मैंने और आपने उसके वसीले से जिंदगी का ताज हासिल कर लिया। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, कलाम में लिखा है ये वही दिन है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि खुश हुआ करें, खुश होना सीखें और खुशियाँ बांटना सीखें, खुशी का इजहार करें। और जो लोग खुशी का इजहार करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, खुश रहते हैं, वो शुक्रगुजारी का अमली मुजाहरा करते हैं। यही है दिन जिसे खुदा ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ये खुशी का दिन है, ये फतहबंदी का दिन है, ये गुनाह पर गालिब आने का दिन है, मौत पर गालिब आने का दिन है। आए न्यारा इस बात का इकरार और लिहाज करें। यही है दिन जो खुदावंद का है। गाएं जरा, गाएं जी। यही है दिन जो खुदावंद का है, जो खुदावंद का है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे यही है दिन जो खुदावंद का है। दोबारा, यही है दिन जो खुदावंद का है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. यही है दिन जो खुदावंद का है। मेरी ये दुआ है कि आज का ये दिन आप सबके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरे और मेरी और आपकी सोच में तब्दीली आ जाए। मेरी और आपकी सोच बड़ी सोच हो, मस्बत सोच हो, ताकतवर सोच हो, ताकि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर हलाकत से बचे और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और उन आदत को आज से ख़त्म कर दें जो दिखावे की आदतें हैं। हम सब में दिखावा बड़ा है, दिखावे की आदतें छोड़ दें, आदतों को बदलें, लाइफस्टाइल बदलें, कंट्रोल करना सीखें। किस पे? ये लेटर सिखाते ही कंट्रोल करना है, तो अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल करना सीखें, अपनी सोच पे भी। खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। ज़बूर गाएंगे, थैंक यू। ज़बूर नंबर 103 गाएंगे। रहमत नाल है भरिया होया, पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है भरिया रहमत नाल है भरिया
खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हम सबको ये खुशी का मौका बख्शा और खुशी के साथ हमने अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरानी है। अपना हाथ बढ़ा, इन्हें भी अपने हुजूर कबूल फरमा और हम सबको भी इन हदियों की तकदीस कर तेरे जलाल के इस्तेमाल हो। जिन लोगों ने गुड फ्राइडे और सनराइज सर्विस में खाने पीने की चीज़ों में हिस्सा डाला, हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनके विसाइल में गुजर गए। इस वक्त मैं तेरा खादिम होते हुए हाजिर जमायत के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। इनके घरों में, ख़ानदानों में तेरा नाम हमेशा तक इज्जत और जलाल पाए। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए, हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस महक की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए। क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद इस खुशी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसने मौत पर, कब्र पर फतह पाई। डायसिस ऑफ रायबन के लिए, बिशप ऑफ रायबन के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम खुदा के खादमों के लिए, तमाम मसीही अदारों के लिए, इंतज़ामिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद। सब बोले वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तू जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदा देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, सेंट जॉन चर्च के एक फर्द पर रहम कर, जो लोग बैरून मुल्क हैं उन सब पर तेरी बरकत चाहते हैं, गमज़दा ख़ानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदा तो इन सबको तसल्ली इत्मीनान अता फरमा और आलमगीर कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते और उनके लिए तुझसे रहम की दुआ करते हैं। इस उसी के नाम से जिसने फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया, सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर। सब बोले आमीन। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहगार बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श
कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और इसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसकी नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगें और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि इत्मीनान बड़ा ज़रूरी है और ये खुदावंद की तरफ से मिलता है और ये परमानेंट है। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो मेरी और आपकी रूहानी ज़िंदगी में ताज़गी पैदा करता है, तैयार है। बड़ी तरतीब के साथ आएँ और तरतीब के साथ वापस जाएँ। अपनी जगह पे जाके बैठ के खुदावंद से दुआ करें, शुक्र करें कि खुदा ने आज का दिन आपको दिया है। भागने की कोशिश ना करें। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और खुश हो। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और खुश हो। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, जो लोग आ नहीं सकते वो अपनी जगह पे बैठे रहे, हम वहीं पे आके उनकी खिदमत करेंगे। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उनकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदा यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर।
खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी भी इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी भी इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी भी इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। हाथ में खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून, ताकि मेरा हाथ चले। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। बस हो गया। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी अदगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया। फादर साहब ये मुझे दें थोड़ा, आप और ले लें। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया,
खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, उसे लिखा और उसके अधिकारी भी। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, बेटा ये पकड़ा, ये मुझे दे दे, इस पर रख दे। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों और खुश हो। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करेंगे। कादिमत खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फजल कबूल कर लिया है और हमें उसके नहाए पेशीन बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से वाकिफ़ हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म से तेरे हजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें ये फजल बख्श ताकि हम इस जहान की हमशक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते हैं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और उसके साथ वाहिद खुदा अब्दुल बाकी का और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बात हमारे खुदा की हो। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, हम सबों के साथ और बैरून मुल्क तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। तो बराए मेहरबानी अपने जो जूतियाँ वो बाहर रखा करें। कुछ लोग दरवाजे के आगे आके रख देते हैं, वहाँ पे क्रॉस वगैरह लगे हैं, थोड़ा एहतराम करें। जी सेक्रेटरी साहब आ जाए। हम ईश्वर के बोले पे आपको भी प्रयोग करने की